Hello students, welcome you all in the fourth session of our chapter number 4, that is carbon and its compounds. Okay students, so let us start with this session. We will discuss regarding some chemical properties of carbon compounds. Okay, our first chemical property of carbon compounds is combustion. Students, what do you mean by combustion? Combustion means burning of any substance in the presence of oxygen. Burning of any substance in the presence of oxygen. So usually carbon compounds burn in the presence of oxygen to form water and carbon dioxide. Carbon dioxide और water release करते हैं and heat and light is also produced. So it means that it is an exothermic reaction. Okay, heat और light भी produce होती है. So once again students, carbon compounds burn in the presence of oxygen to form carbon dioxide, water, heat and light. So you can see the examples. The first example is burning of carbon, simply carbon. Carbon plus oxygen will give you carbon dioxide. Carbon dioxide plus heat and light is released. Then second example, CH4. What is CH4? Methane. Okay, when methane burns in the presence of oxygen, it also gives water and carbon dioxide. H2 or CO2 मिल रहा है, but along with that, heat and light is also produced. Now the third example is C2H5OH. What is this compound? Actually students, C2H6 क्या होता है? इथेन. और इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल के OH ग्रुप लगाया है. So it is ethanol. Okay, ethanol plus oxygen burns in the presence of oxygen to give what? Water plus carbon dioxide plus heat and light is produced. So whenever carbon compounds are burnt in the presence of oxygen, then light is also produced along with carbon dioxide and water. Now the second property of carbon compounds is oxidation. Okay, oxidation means what? To provide oxygen, to supply oxygen to the carbon compounds. So here let us take an example of alcohol. Okay, when alcohols are oxidized, if we give one oxygen to alcohol, they form carboxylic acids. What do they form? Carboxylic acids. Alcohols क्या होते हैं? जिसके अंदर बॉन्ड OH होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है, और उस अल्कोहल ग्रुप को आप एक ऑक्सीजन सप्लाई करोगे, ओके, तो वो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. मतलब क्या बन जाएगा? COOH वाला बन जाएगा कंपाउंड. ओके, नाउ ये जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करता है? देयर आर सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ओके, दोज कंपाउंड्स विच सप्लाई दिस ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो हियर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक पोटेशियम परमैंगनेट वी आर टेकिंग, और दिस एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है KMnO4, और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है K2Cr2O7. ओके, दोनों में से कोई भी कंपाउंड ले लो, दे बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. दे विल सप्लाई ऑक्सीजन टू व्हाट? टू द अल्कोहल्स. तो विच अल्कोहल वी आर टेकिंग? इथेनॉल. इथेनॉल क्या है? इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल के OH लगा दिया, इथेनॉल. ओके स्टूडेंट्स, so what happened when ethanol we are taking and we are heating in the presence of these oxidizing agents? Either it may be alkaline potassium permanganate or acidic potassium dichromate. They both can produce oxygen to ethanol, and this ethanol turns into what? Ethanoic acid, CH3COOH. So when the oxidation of alcohols takes place, they form carboxylic acid. CH3COOH क्या है? ethanoic acid है. ये carboxylic acid का compound है ये. Okay students, I hope you understood this second chemical property of carbon compounds. Now the third chemical property is addition reaction. What do you mean by addition reaction? When it can be possible first of all? So students, unsaturated hydrocarbons, we all know unsaturated hydrocarbons are either alkenes or alkynes, जिसमें double bond या triple bonds होते हैं. Unsaturated hydrocarbons undergo addition reaction with hydrogen, है ना. उसमें क्या ऐड कर सकते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. विच कैटलिस्ट? निकल और पैलेडियम. हम लोग किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर सकते हैं, निकल और पैलेडियम, एंड दे फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और उसमें एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं. क्या ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन. Okay, in the presence of what? In the presence of nickel or palladium catalyst. Okay, and they form what? Unsaturated hydrocarbons क्या बन जाएंगे? Saturated hydrocarbons बन जाएंगे. For example, we are taking ethane. Ethene ले रहे हैं.
इथीन पता है ना, एल्कीन ग्रुप का पहला कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, इथीन। ऑन प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन टू दिस इथीन, इथीन के अंदर हम एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, उसको हमने हाइड्रोजन दिया, ओके। ऑन प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन टू इथीन, व्हाट यू आर गेटिंग, इट फॉर्म्स इथेन। हाउ? इथीन हमने लिया, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसको हाइड्रोजन दे दिया, ओके, प्लस H2 दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट। निकल का सिंबल है Ni और पैलेडियम का है Pd, ओके। तो आपको क्या मिल रहा है? इथेन। ये दो हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक करके एक एक कार्बन पे लग जाएंगे, ओके। ये जो H2 हमने प्रोवाइड किया ना, दिस H2 विल बी, ईच H विल बी गोइंग टू ईच कार्बन। तो हर एक कार्बन के पास अभी पहले ऑलरेडी दो दो हाइड्रोजन थे, अभी एक हाइड्रोजन और आ गया, तो इट विल बी CH3, फिर वो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3, ओके। इन दिस वे वी गॉट इथेन। इथीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करने पर, H2 ऐड करने पर हमको मिल गया इथेन, ओके। और डबल बॉन्ड ब्रेक होके क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल बिकम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड दिस एडिशन रिएक्शन of hydrogen is also called hydrogenation. What is it called? Hydrogenation, क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, इसके लिए इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। एंड दिस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स इनटू सैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स, ओके। अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल्स, उस वेजिटेबल ऑयल्स में से हम लोग वेजिटेबल घी बना सकते हैं बाय गिविंग हाइड्रोजन टू देम। उनके ऊपर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करके वेजिटेबल ऑयल्स में से हम लोग वेजिटेबल घी बना सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन निकाल दो और एक कोई भी एक कंपाउंड लगा दो, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप, जैसे हम लोग क्लोरीन लगा सकते हैं, है ना। जैसे मीथेन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, बट इट इज़ ओनली पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं ना, उनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। जैसे हमने मीथेन लिया CH4, ओके, मीथेन को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया Cl2, ओके, तो आपको क्या मिलेगा? मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और जो Cl2 है उसमें से एक क्लोरीन निकल जाएगा, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन कंबाइन होकर क्या बना देंगे? HCl, ओके। अब क्या बच गया? CH3 आपके पास बच गया एंड वन क्लोरीन, दैट विल कंबाइन टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड, ओके, CH3Cl या फिर क्लोरोमीथेन जिसको हम बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो वंस अगेन CH4 प्लस Cl2, CH4 में से एक हाइड्रोजन निकला, Cl2 में से एक क्लोरीन निकला, वो H और वो Cl मिलके क्या बन गए? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। और बाकी क्या बच गया आपके पास? CH3 और एक क्लोरीन, वो दोनों कंबाइन होकर बन जाएंगे क्लोरोमीथेन, ओके। इस क्लोरोमीथेन को वापस से क्लोरीन से रिएक्ट करो, तो एट दैट टाइम यू विल गेट डाइक्लोरोमीथेन, ओके। और एक बार क्लोरीन से करोगे तो आपको मिलेगा ट्राइक्लोरोमीथेन, और वापस से और एक बार आप क्लोरीन से रिएक्ट करो तो आपको मिलेगा टेट्राक्लोरोमीथेन, ओके। मतलब कार्बन के पास अभी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, चारों बॉन्ड उसके क्लोरीन से सेटिस्फाइड हो रहे हैं, CCl4, दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन। तो हमको स्टूडेंट्स चारों रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, यू विल डू ओनली द फर्स्ट रिएक्शन फॉर योर एग्जाम्पल। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एक हाइड्रोजन को निकाल के एक हैलोजन ग्रुप क्लोरीन को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, so this is substitution reaction. So far we students discussed regarding the chemical properties of carbon compounds like combustion, oxidation, addition reaction and substitution reaction. Now let us discuss some important carbon compounds, okay. These carbon compounds are very important commercially. There are two carbon compounds which are very very important. The first carbon compound is ethanol and the second carbon compound is ethanoic acid. So let us understand regarding, first of all, regarding ethanol. So ethanol's molecular formula is C2H5OH. C2H5OH इसका molecular formula है C2H5OH. इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप लगा दिया तो बन गया इथेनॉल. इट इज़ ऑल्सो कॉमनली नोन एज इथाइल एल्कोहल. इथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड. इसका कोई कलर नहीं होता है. इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड विथ अ प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट. ओके, इसका स्मेल कैसा होता है? प्लेजेंट होता है. बट टेस्ट कैसा होता है? बर्निंग. मतलब उसका टेस्ट अगर करोगे तो आपको जलेगा आपको मुंह में. ओके, सो इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड विथ अ प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट. इट इज़ soluble in water. It is easily soluble in water.
Okay, now something important which I am going to discuss is that we all have studied in 9th standard regarding tincture of iodine. जब हम इथेनॉल को आयोडीन में डिजोल्व करते हैं या आयोडीन को इथेनॉल में डिजोल्व करते हैं तो क्या मिलता है आपको? टिंक्चर ऑफ आयोडीन. ओके, देन वी कैन ऑल्सो सी दैट इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी आपको याद रखने का है. तो इथेनॉल जो रूम टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में वो रूम टेम्परेचर पे रहता है. ओके, नाउ इसका हम लोग को कुछ टेम्परेचर्स भी याद रखने के. तो कैसे याद रखेंगे हम लोग इसके टेम्परेचर्स? आई एम सेइंग, ये अपने अभी स्क्रीन पे नहीं है. इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन. यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, या नोट डाउन कर लो कहीं पे भी. इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन और उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन. ओके, 351 केल्विन इज बॉइलिंग पॉइंट एंड 156 केल्विन इज मेल्टिंग पॉइंट. ये नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स कहीं पे भी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम. इथेनॉल किससे रिएक्ट करता है? सोडियम से, टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड. क्या फॉर्म करता है? सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. तो सी हियर द रिएक्शन. इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH. इट रिएक्ट्स विथ सोडियम Na, ओके, टू गिव सोडियम इथॉक्साइड, एंड सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला है C2H5ONa. C2H5ONa, it is sodium ethoxide plus hydrogen gas H2 is released. So this is first reaction. Now the second reaction is ethanol reacts with concentric sulfuric acid. Concentric मतलब एकदम गाढ़ा sulfuric acid to form ethene and water. एक्चुअली ये जो कॉन्सेंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको जैसे ही आप इथेनॉल में डालोगे ना तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब उसके अंदर से इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा. डिहाइड्रेशन करना मतलब क्या? वाटर निकल जाना. तो इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा तो क्या बन जाएगा? वो इथीन बन जाएगा. क्या बन जाएगा? इथीन. तो यू कैन सी दैट C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 you get C2H4. C2H4 क्या होता है? इथीन प्लस वाटर इज रिलीज्ड. वाटर रिमूव हो जाता है इथेनॉल में से. ओके, सो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स. एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स लोग कंज्यूम करते हैं कुछ लोग. इट इज़ वेरी हार्मफुल. ओके, देन इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज और लेबोरेटरीज में सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है. मेनी थिंग्स आर डिजॉल्व्ड इन इथेनॉल. फॉर एग्जाम्पल आयोडीन. आयोडीन को जब हम इथेनॉल में डिजोल्व करते हैं तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन मिलता है विच इज़ अ मेडिसिन. इवन कफ सिरप्स, टॉनिक्स जो हमको मिलते हैं, है ना, वो सारे में भी थोड़ा बहुत एल्कोहल का, इथेनॉल का कंटेंट होता है. वो थोड़ा बहुत कंटेंट जो है हमको मेडिसिन की तरह होता है, बट उसको अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो एल्कोहलिक ड्रिंक्स बन जाएंगे विच इज़ वेरी हार्मफुल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज व्हाट? इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH. CH3COOH. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड. इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? एसिटिक एसिड. ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड? तो इथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड. इट इज अ कलरलेस लिक्विड विथ अ पंजेंट स्मेल एंड सॉर टेस्ट. पंजेंट स्मेल, अजीब सा स्मेल होता है, आप उसको सूंघ नहीं पाओगे. एंड सॉर टेस्ट, सॉर मतलब खट्टा टेस्ट का होता है. It is also soluble in water. Now a solution of 5% to 8% ethanoic acid in water is called vinegar. You know vinegar students, हम लोग हमारे घरों में विनेगर यूज़ करते हैं, स्पेशली चाइनीज़ फूड में विनेगर डालते हैं. ओके, खट्टा होता है वो, खटास लेके आने के लिए. तो एक्चुअली विनेगर बनता कैसे है? अगर आप वाटर में 100 ml वाटर में 5 to 8 ml अगर आपने क्या डाला? इथेनोइक एसिड डाला, तो आपको क्या मिलेगा? विनेगर मिलेगा. अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं 5 to 8% इथेनोइक एसिड इन वाटर. इट इज़ कॉल्ड विनेगर. नाउ वन मोर प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन. मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 391 केल्विन. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 391 केल्विन. Now some more reactions. The first reaction which we are going to do is esterification reaction. What do you mean by esterification reaction? Whenever an acid, carboxylic acid, reacts with alcohol, carboxylic acid जब alcohol से react होता है, they form a new group of compound called ester.
ओके वो क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। ओके एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। वंस अगेन स्टूडेंट्स, व्हेनेवर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एल्कोहल्स, ऐसे कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ऐसे कंपाउंड जो एल्कोहल है, उन दोनों का आप जब रिएक्ट करोगे ना तो वो न्यू कंपाउंड बनाएंगे जिसमें एस्टर ग्रुप होता है। एस्टर ग्रुप कौन सा होता है, COO, दैट इज एस्टर ग्रुप एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो विच acid we are taking, ethanoic acid CH3COOH, and which alcohol we are taking, ethanol C2H5OH। ओके और इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड। ओके देन द रिएक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल एंड यू विल गेट CH3COO C2H5। तो बीच में देखो COO आ रहा है, COO इज एस्टर ग्रुप, सो ये आपका एस्टर है और इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। क्या नाम है, इथाइल इथेनोएट, या फिर सिंपली बोल सकते हैं इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं या इथाइल इथेनोएट। इट इज़ एन एस्टर प्लस वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। ओके वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिमूव हो जाता है एंड दिस रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो whenever carboxylic acid and alcohol combine they form an ester and this reaction is esterification reaction, और ये example आप दे दोगे। and students you should remember that these esters have very sweet smell, fruity smell आता है इसके अंदर, fruits जैसा smell आता है। understood, ये जो ester के compounds होते हैं। now the next reaction we are going to do is saponification reaction। what do you mean by saponification reaction? the reaction in which soap is produced, जिसमें सोप प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके तो इसमें क्या क्या यूज होता है, लेट अस सी। व्हेन एन एस्टर, इसमें क्या यूज करते हैं, एस्टर रिएक्ट्स विथ व्हाट, रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एस्टर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होता है इट फॉर्म्स सोडियम एसीटेट। ओके ये सोडियम एसीटेट बना रहा है, सोडियम एसीटेट यानी क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अनदर एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड, एक एल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है। दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो बन रहा है ना वो है सोप, वो क्या है, सोप। एंड सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके हम इसका एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने कौन सा एस्टर लिया, हमने इथाइल इथेनोएट, इथाइल एसीटेट भी बोलते हैं, CH3COO C2H5। इस एस्टर को हम लोगों ने किससे रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, so once again what we have taken, the ester we have taken is ethyl ethanoate CH3COO C2H5 and the hydroxide you have taken sodium hydroxide NaOH, they combine to form CH3COO Na, ये है soap। okay CH3COO Na, that is called sodium salt of carboxylic acid, सोडियम एसीटेट मिल रहा है प्लस C2H5OH इथेनॉल आपको मिला। अंडरस्टूड, एंड दिस रिएक्शन इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये भी 2 मार्क्स में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इथेनोइक एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है, बेस से। तो हमने वही देखा ना, वही सेम रिएक्शन आप दे सकते हो सेपोनिफिकेशन वाला। इथेनोइक एसिड क्या है, CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हमने लिया, तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस वाटर इज प्रोड्यूस, सॉल्ट है आपका सोडियम एसीटेट प्लस H2O वाटर इज प्रोड्यूस्ड। सो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इथेनोइक एसिड जो है कार्बोनेट से भी रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी रिएक्ट होता है। तो कार्बोनेट का एग्जाम्पल हमने क्या लिया, Na2CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जाम्पल क्या लिया, NaHCO3। तो पहला रिएक्शन इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो यू विल गेट सोडियम एसीटेट CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। Similarly, when we react ethanoic acid with sodium hydrogen carbonate NaHCO3, then also you will get same compounds, sodium acetate CH3COONA plus water plus carbon dioxide gas is released। बस दोनों इक्वेशंस में खाली बैलेंसिंग का फर्क है, बाकी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स मोस्टली सेम है। उसमें कार्बोनेट लिया Na2CO3 और सेकेंड रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया NaHCO3। So this is the full description of very important compound that is ethanoic acid, जो इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स,
Yes, student, our next topic is soaps and detergents. Okay, so let us go for the soaps first. Okay, soaps are what? They are the long chain sodium or potassium salts of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लॉन्ग चेन पोटेशियम या सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला है C17H35COONA. तो ये सोडियम का सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का. अंडरस्टूड? सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोप. नाउ हाउ डज वी सी अ मॉलिक्यूल ऑफ सोप? एक सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अ सोप मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हैज़ टू पार्ट्स. एक जो आप देख सकते हैं लॉन्ग चेन पार्ट आपको दिख रहा है जिगजैग पार्ट वाला, है ना, उसको हम वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, वो हाइड्रोकार्बन पार्ट है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट. व्हाट इज इट कॉल्ड? हाइड्रोफोबिक एंड. एंड द नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिखा रहा है जो सर्कुलर शेप में है, ओके, दैट इज व्हाट it is ionic part and it is called hydrophilic part. What is it called? Hydrophilic part. Okay, now जो ये लॉन्ग चेन है ना हाइड्रोकार्बन का, जो हाइड्रोफोबिक है पार्ट है, इट इज नॉट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स वाटर. ये वाटर रिपेलिंग है, इसको वाटर से कोई अट्रैक्शन नहीं है, बट इसको किससे अट्रैक्शन है? ऑयल या ग्रीस या जो डर्ट होता है ना, जो कपड़ों में जो डर्ट लगा होता है उस पर ये अट्रैक्ट करता है हाइड्रोकार्बन पार्ट. दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड. इसको टेल भी बोलते हैं. और ये जो हेड वाला पार्ट है ना, that is hydrophilic part, it is strongly attracted towards what? Towards the water molecules. फिर से स्टूडेंट्स, जो ये जो टेल वाला पार्ट है which is hydrophobic, it is attracted towards the dirt, है ना, stain, grease, oil. and the hydrophilic part जो हेड वाला पार्ट है ना, it is attracted towards the water. now how is the cleansing action of soap is taking place? है ना, कैसे हमारे कपड़े धुलते हैं, कैसे हमारा मेल निकलता है सोप लगाने के कारण, वो भी हम देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो उसके लिए क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मिसल फॉर्मेशन. मिसल फॉर्मेशन के लिए आप लोग एक फिगर रेफर करेंगे इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 74. पेज नंबर 74 फिगर 4.12. ये मिसल फॉर्मेशन का फिगर है. इफ़ यू लुक एट दैट फिगर यू कैन सी दैट देर इज़ अ डर्ट इन बिटवीन. येलो कलर का जो दिया हुआ येलो या ऑरेंज कलर का, वो अपना ऑयल है, वो ऑयल का स्टेन है. अभी आप सोप से उसको रिमूव कर रहे हैं, तो जैसे आप उस पर सोप लगाओगे तो वी ऑल नो दैट कि सोप के मॉलिक्यूल्स तो इस तरह से होते हैं, टेल पार्ट और हेड पार्ट. जिसका टेल पार्ट किससे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा? किससे? ऑयल से. क्योंकि हम जानते हैं कि टेल पार्ट दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑयल. ओके, वो ऑयल से अट्रैक्ट हो गए. सारे सोप मॉलिक्यूल्स का टेल देख सकते हैं आप लोग, ऑयल से अटैच्ड है एकदम सर्कुलर वे में. दिस इज कॉल्ड मिसल फॉर्मेशन. व्हाट इज इट कॉल्ड? मिसल फॉर्मेशन. यू कैन सी दिस फिगर हियर ऑल्सो. आप देख सकते हैं कि बीच में देखो क्या है, ऑयल मॉलिक्यूल है. ओके, वो सारे ऑयल मॉलिक्यूल्स क्या है, बीच में ऑयल जो है उसके आजू बाजू जो है पूरा देखो टेल की तरह लगा हुआ है. टेल पार्ट पूरा अटैच्ड है. ओके, और हेड पार्ट जो है किससे अटैच्ड है? वाटर से अटैच्ड है. हेड पार्ट जो है ना हाइड्रोफिलिक एंड आयोनिक पार्ट, सोडियम का आयन्स जहाँ पर है, वो पूरा पार्ट किससे अटैच्ड है? वाटर से. और टेल पार्ट सभी मॉलिक्यूल के किससे अटैच्ड है? डर्ट से, यानी ऑयल से. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? ओके, ये जो फॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन. ओके, all the clusters of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster, है ना, हाइड्रोफोबिक टेल्स जो सारे कहाँ पे? इंटीरियर में. एंड द आयोनिक एंड्स यानी हाइड्रोफिलिक एंड्स आर ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर. दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ मिसल. व्हाट इज इट कॉल्ड? मिसल. MICELLE. सोप इन द फॉर्म ऑफ अ मिसल इज एबल टू क्लीन. ओके, ये जो मिसल फॉर्मेशन में आराम से ऑयल को क्लीन कर सकता है, सिंस द ऑयल डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल. द मिसल स्टेज इन द सोल्यूशन एज अ कोलॉइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन एंड रिपल्शन. मतलब क्या होगा, जैसे ही आप अभी कपड़े जो है पानी में खंगालोगे, पानी में जब हम कपड़े नहीं ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, ओके, तो क्या होगा, जैसे ही हमारा कपड़ा पानी में से बाहर निकलेगा, ओके, तो वाटर नीचे रह जाएगा. अब वाटर मॉलिक्यूल किससे अटैच्ड है? हेड पार्ट से, सोप मॉलिक्यूल के हेड पार्ट से. तो सोप मॉलिक्यूल का हेड पार्ट भी नीचे रह जाएगा. अब हेड पार्ट किससे अटैच्ड है? टेल के साथ. तो टेल भी नीचे रह जाएगा. और टेल किससे अटैच्ड है? ऑयल के साथ. तो ऑयल भी कहाँ रह जाएगा? पानी में ही रह जाएगा. और हमारा शर्ट जो है बाहर आ जाएगा, कपड़ा बाहर आ जाएगा. आर यू गेटिंग इजीली स्टूडेंट्स? क्या हो रहा है, जैसे ही हम लोग क्लॉथ को रिंस करते हैं वाटर में, तो व्हाट विल हैपन, जैसे हमारा क्लॉथ हम वाटर से बाहर निकालते हैं तो वाटर नीचे रह गया. वाटर नीचे रह गया तो वाटर के साथ क्या अटैच्ड है? हमारा हेड पार्ट सोप मॉलिक्यूल का. तो हेड पार्ट के साथ क्या अटैच्ड है? टेल पार्ट. और टेल के साथ क्या अटैच्ड है? ऑयल. ये सब कुछ पानी में ही रह जाएगा और हमारा क्लॉथ जो है क्लीन होकर बाहर आ जाएगा. सो इन दिस वे द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ द क्लॉथ टेक्स प्लेस.
Okay, and this missile formation is very very important in this reaction. Okay students, नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्जेंट्स. हमने सोप के बारे में तो देख लिया. नाउ डिटर्जेंट्स, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स डिटर्जेंट्स आर कंपेरेटिवली बेटर देन सोप. क्यों? हम लोग हमारे घर पे हम जानते हैं कि पहले कपड़ों को हम डिटर्जेंट में भिगोते हैं, बाद में उसको धोते हैं, भले बाद में हम सोप लगाते हैं. क्यों? खाली सोप से क्यों नहीं कपड़े धो लेते हैं? कि एक्चुअली समटाइम्स व्हेन द हार्ड वाटर इज देयर, मोस्टली घरों में जब हम पानी लेते हैं, अगर पानी नमक वाला हो तो वो हार्ड वाटर होता है. द वाटर विच कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, है ना, दे आर कॉल्ड हार्ड वाटर. और जब हार्ड वाटर के साथ आप है ना सोप लगाओगे कपड़े में, तो ये जो कपड़े जो सोप है ना वो आपको फोम नहीं देगा, झाग नहीं देगा. क्यों? बिकॉज सोप डू नॉट वॉश वेल विद द हार्ड वाटर बिकॉज इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम सॉल्ट्स इन वाटर. क्योंकि जैसे ही आप सोप लगाओगे कपड़े के ऊपर तो वो हार्ड वाटर एंड इसके सॉल्ट से कंबाइन होकर क्या बना देगा? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना देगा, जिसके कारण वो फोम प्रोड्यूस नहीं होगा. FOAM, फोम, झाग नहीं आएगा और कपड़े धुलेंगे नहीं, आपका मैल नहीं निकलेगा, पानी खा रहा है. अगर आपने उसकी जगह पे डिटर्जेंट यूज़ किया तो डिटर्जेंट जो है इन सॉल्ट से रिएक्ट ही नहीं होता है, इनसे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ. इसके लिए वो हार्ड वाटर के सॉल्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो आराम से क्या करता है? कपड़ों के मेल को धो देता है. सो डिटर्जेंट्स वॉश वेल विथ हार्ड वाटर बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन हार्ड वाटर. सो डिटर्जेंट इज बेटर देन सोप. तो इसका डिफरेंस भी आप देख सकते हो. सोप मतलब क्या? सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स and detergents are sodium salts of sulfonic acids. Okay, now soaps clean well in soft water but do not clean well in hard water. soaps जो है soft water में तो ठीक है, लेकिन hard water में use नहीं कर सकते. detergents clean well with both hard and soft water. now soaps do not clean as well as detergent. soap से आप कपड़ा धोगे तो इतना सफाई नहीं मिलेगा जितना डिटर्जेंट से. detergents clean better than soaps. now soaps are biodegradable and do not cause pollution. सोप से कोई पोल्यूशन नहीं होता है, बट डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. डिटर्जेंट कैन कॉज पोल्यूशन. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स बाय दिस वी फिनिश आवर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. इन दिस चैप्टर इज अ वेरी वेरी लेंथी चैप्टर. ओके, गुजरात गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस सम टॉपिक्स. आप वो देख के आपको, अगर आपको नहीं प्रिपेयर करना है तो आपकी मर्जी है. मैंने तो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है. ओके स्टूडेंट्स, okay, go through this chapter very carefully, especially those students who wish to go for science branch after 10th standard. उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. okay, so go through this chapter. We will meet in the next chapter with the new topics. Till then, thank you students.